respected, who are reputed, who have got a good power in the society, when they come into the church, they will start dictating terms to the church and mislead the church. We have to be careful about that. और जो ऐसे लोग हमारी कलीसियाओं में आते हैं जो आर्थिक रूप से अच्छे हैं, सामाजिक में उनका मान सम्मान है, जब ऐसे लोग हमारी कलीसियाओं में प्रवेश करते हैं तो वो अपने हिसाब से कलीसिया को चलाना चाहते हैं. हमें उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए. When such things happen, it's very difficult not to please them. When we allow such kind of people in the church, there's nothing wrong in allowing them, but when we allow them, they will start dictating terms and deviating the church members from the truth. So it's very difficult to say no. We've got to be very careful. इस प्रकार के लोगों को चर्च में आने तो दिया जाए, लेकिन उनसे हमें सावधान रहना है. जब वो आएंगे तो अपने हिसाब से चर्च के जो सदस्य हैं उनको अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे. And so from these verses 20 to 23, we find that the Lord is giving them, the church in Thyatira, He's giving those members a lot of time for them to correct themselves. और वहां पर हम लोग 23 और 24 जो रेवलेशन 2 का है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो बच्चों को एक साइड में करना चाहेंगे. No, he's giving them a lot of opportunity to correct themselves. और वहां पर उनको बहुत सारे ऐसे अवसर मिल रहे हैं कि वो अपने आप को सुधार कर सकते हैं. All right, that is what you find in verses 20 to 23. और वही हम लोग वचन 23 और 24 में देखते हैं. All right. Now what you see on the screen, don't worry about that, because I am giving you an outline of all these things as I speak. And when I share the presentation, it is for your study. You can read through them. Those are my notes which I'm sharing with you. और आप लोगों के साथ में जो स्क्रीन मैं साझा कर रहा हूं, जो नोट्स मिल रहे हैं, वो आपके आगे की अध्ययन के लिए है. Yeah. So whatever is important, I'm speaking to you, but some points are there which you can study in your personal study when you read, when you revise all these things. और ये जो मैं आपसे बस महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर रहा हूं. All right. Now what you see this picture are the remains of what you find of Thyatira. This is found in the center of the city there. और ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये थियातीरा कलीसिया के कुछ अवशेष जो बचे हुए हैं उनको आप देख रहे हैं. All right. Now, and I told you the name of Thyatira today is called Akhisar. और तायतीरा कलीसिया का जिस प्रकार मैंने कल नाम बताया था आपको, अकीसा. And today's Turkey, it is called Akhisar. और आज ये तुर्की देश में पाया जाता है अकीसा नाम से. All right. Now we go to the last portion of that letter to the church at Thyatira. Pardon, sir? We go to the last portion of the letter to the church at Thyatira. और आज हम लोग थुआतीरा कलीसिया के जो आखिरी भाग को हम लोग पढ़ेंगे. You find that in verses 24 to 29. और हम लोग उस भाग को देखते हैं 24 वचन से 29 वचन तक. Can one of you read verse 24 please? क्या आप में कोई पढ़ सकते हैं? बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन लोगों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे है उसको मेरे आने तक. All right. I think there is one phrase in that verse. I did not notice it in Hindi, but it says rest, the rest in Thyatira. जी brother. Okay. एक बात है जो हिंदी में सर ने नोटिस नहीं की, लेकिन इंग्लिश में है कि आप उसमें बने रहो. The rest in Thyatira. It's a significant word there. और ये वहां पर महत्व रखने वाला एक शब्द है, वो उसमें बने रहो. All right. The Lord is now condemning the church. He's now cautioning the church in general. और यहाँ पर हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर या खुले आम प्रभु इस कलीसिया के बारे में उसको कंडम्न कर रहे हैं, उसको श्राप दे रहे हैं. And then he is also consolation, as a consolation or as an encouragement. He's speaking to the church, and this is what he's saying. He's talking about the rest in Thyatira. लेकिन उसके तत्पश्चात प्रभु उनको जो सांत्वना भी दे रहे हैं कि आपको उस थाइटिरा में ही रहना है.
if you read in those verses, you'll find the rest in Thyatira do not know the depth of Satan. और वहां पर प्रभु इस प्रकार से कहता है कि थुआतीरा में रह करके वहां पर तुम उस जो शैतान का जो गहराई है आप वहां की नहीं जानते। Now, if you remember the story or the history of King Ahab and his wife Jezebel, if you remember that, और हम सभी लोग जानते हैं जो इज़राइल जो स्त्री नामक थी उसका इतिहास के बारे में उसने क्या किया था। now Jezebel killed had killed the prophets of the Lord. और इज़राइल ने जो प्रभु के भविष्यवक्ता थे परमेश्वर के उन सभी को उसने मार दिया। And she was planning to kill Elijah. और यहाँ तक कि वो एलिया को भी वो मारने वाले के योजना बनाई थी। And then you will remember what Elijah went and told the Lord. और हम सभी लोग जानते हैं कि एलिशा ने क्या किया था, वो परमेश्वर से उसने जाकर के क्या कहा। He told the Lord, I am the only one who is surviving. There is no one else. Everyone has been destroyed by Jezebel. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु से वो एलिशा यहोवा से जाकर के कहता है, प्रभु केवल मैं ही अकेला जीवित रह गया हूँ और बाकी सबको उसने मार डाला है। And I hope you will remember what the Lord told Elijah. और हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या एलिया को कहा था, जवाब दिया था। The Lord told Elijah, remember, there is still a group that is following me. About 7,000 people, I have safeguarded them in a cave. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने एलिया को कितना सुंदर जवाब दिया। उससे कहा कि तुम नहीं जानते हो कि अभी भी ऐसे लगभग 7,000 लोग हैं जिसके घुटने उनके देवताओं के सामने नहीं टिके और वो अभी भी मुझे मानते हैं, मेरा अनुकरण करते हैं। Beautiful, Deepu. They are the ones who have not knelt down before Baal. That is exactly what the Lord tells Elijah and then encourages Elijah. और यहाँ पर हम यही तो बात प्रभु कहते हैं, यहोवा कहते हैं एलिया से कि यही अभी 7,500 आदमी ऐसे हैं जिनके घुटने बाल के सामने नहीं झुके। This is exactly what the Lord is telling to the believers to the church at Thyatira. यही तो बात है जो थुआतीरा के कलीसिया के विश्वासियों के लिए प्रभु कहना चाहते हैं। Yeah, the Lord is telling them there are still some people who have not bowed down to the doctrines of people like Jezebel who have come into the church. That's what he's telling. प्रभु यह कह रहे हैं कि उस थुआतीरा के जगह में ऐसे और भी विश्वासी लोग हैं जिन्होंने जो इज़राइल की जो सैद्धांतिक शिक्षा जो कलीसिया में घुस करके उसने सिखाई उसको नहीं माना है, उसके सामने घुटने नहीं टेके। People like Jezebel who are bringing false doctrines, who are bringing the depth of Satan into this church, there are still some believers who have not bowed down to them. That is what the Lord is telling them. और हम जानते हैं प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि थुआतीरा के जो कलीसिया है, जो यहाँ तक कि इज़राइल नामक जो चर्च के अंदर झूठी शिक्षाओं को लेकर के आ रही है, शैतान की जो शिक्षाओं को लेकर के गहराई को लेकर के उस कलीसिया के अंदर आ रही है, उसके तत्पश्चात भी इधर में ऐसे विश्वासी हैं जो उनको नहीं मानते और उसके सामने घुटने नहीं टेकते। All right. Now, this is the time during the period of the Church of Thyatira that the Roman Catholic way of mass services, mass sacrifices, they were happening in the church. See, in the church, the Roman Catholic way of worship, they call the first mass, the second mass, the third mass, and all that. That kind of worship had started at that time. और उसी समय में जिस प्रकार से आज रोमन कैथोलिक लोग जो मास के अनुसार जो आराधना करते हैं, उसी प्रकार से उस समय में भी वहां पर इज़राइल के आने के तत्पश्चात ये सारे मास के तरीके से उनकी आराधना करना उन्होंने शुरुआत कर दिया। All right. In Matthew chapter 13, the Lord speaks about 7 parables. और हम सभी लोग जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु वहां पर कुछ 7 पैराबल्स के बारे में, वहां पर दृष्टांतों के बारे में बताते हैं। If you compare those 7 parables and the 7 letters to the churches and the 7 types of believers, you will find it very strikingly similar. और यदि आप जो वहां पर जो 7 दृष्टांत हैं उनको यदि आप कलीसिया के साथ संदेशों के लिए और वहां के जो विश्वासियों से यदि आप और कलीसिया से तुलना करेंगे तो उनके अंदर आपको एक अलौकिक और अनोखी तुलना उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। All right. Now, one of the parable is what the Lord talks about: a woman who
who it talks about a leaven that is mixed in 3 measures of flour. It makes the whole flour, it leavened or it sours. और हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि वो एक जो खमीर है, खमीर जो है कि बड़ी सभा क्या बोलते हैं उनको मिला करके 3 प्रकार के आटों को मिला करके एक खमीर को बनाते हैं. All right, that leaven is a representation of false doctrine. और जो खमीर है वो झूठी शिक्षाओं का एक प्रकटीकरण है, प्रत्यक्ष है. Now, the false doctrine is mixed in the truth and fed to the people, and this is exactly what was happening in the church at Thyatira. और यहाँ पर इससे समझ सकते हैं कि जो मिलावटी शिक्षा और झूठी शिक्षा को उन्होंने तैयार करके लोगों को जिस प्रकार से खमीर को खिलाते हैं वैसे ही उनको भी वो सिखा रहे थे. All right. Now, so and this is where the role of Jezebel comes. और यहाँ यही तो वो है जहाँ पर इज़बेल का भूमिका यहाँ पर निभाते हुए देखते हैं. And so the Lord is saying there are still a rest of those people who have not gone by the false doctrine, who have not bowed down to the way the world is coming into the church in the form of Jezebel, and he was encouraging them. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु उनको इस प्रकार से उत्साहित करते हैं कि ऐसी जगह में इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग और विश्वासी हैं जिन्होंने उनके जो इज़बेल की शिक्षाएं या झूठी शिक्षाएं मिलावटी शिक्षाएं हैं उनके सामने उन्होंने सिर नहीं झुकाए, घुटने नहीं झुकाए, ना ही उनको मानते हैं. Okay, and when the Lord speaks to the church at Thyatira, he's talking to them about some rewards. और जब प्रभु थुआतीरा कलीसिया के वो जब वार्तालाप करते हैं उनसे तो उनके वहां पर वो कुछ तोहफे के बारे में अर्थात उनको जो रिवार्ड्स अर्थात उनको प्रतिफल देने के बारे में बात करते हैं. And the reward is, he's saying there will not be any burden upon you. और वो जो प्रतिफल उसका और जो मुकुट वो उसको यही है कि तुम्हारे ऊपर कोई और बोझ नहीं रहेगा. And you will have power over all the nations. और तुम सारे देशों पर अपना शक्ति और सामर्थ्य को पाओगे. Yeah, during the millennial reign you will have power over all the nations. और जो मिलेनियल का जो समय आएगा उस समय में आप पूरे विश्व पर सामर्थ्य को प्राप्त करोगे. Read verse 27, brother. और वचन 27 में जब हम पढ़ेंगे, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है. Okay, yesterday we saw and I told you that Thyatira is not a big place like Ephesus or Smyrna or Pergamum. It was a small place. There were a lot of guilds or unions there. But among the small type of people, the Lord is encouraging them and saying that, listen, I will not put any burden on you, number one. Number two, you will have power over all the nations during the millennial reign. What a blessed saying the Lord told them. और हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जैसे कि सर ने पहले कल के क्लास में बताया था कि थुआतीरा के कलीसिया का जो जहाँ पर थी वो जगह जो है ज्यादा प्रसिद्ध और व्याख्यात नहीं थी और ज्यादा बड़ी जगह नहीं थी यदि हम उसकी स्मिर्ना और एफेसस से तुलना करें. लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसी जगह में रहते हुए उनको इस प्रकार से बोलते हैं कि तुम जो भले ही इतने बड़े नहीं हो, लेकिन उस समय में मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा और तुम जो है सारे विश्व पर एक सामर्थ्य को प्राप्त करोगे और मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डालूंगा. All right, very good. And the third one which the Lord is saying, I will give him the morning star. और जो तीसरी बात वहां पर प्रभु वादा करते हैं उनसे और वो कहते हैं मैं तुम्हें भोर का तारा दूंगा. So who is the morning star? और भोर का तारा कौन है, क्या है? Morning star, we all know, refers to the Lord Jesus Christ. और हम सभी लोग जानते हैं कि भोर के तारे को प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाते हैं. Actually speaking, there is a star called a morning star. और यदि हम इसको साधारण तौर पर यदि हम देखें तो नक्षत्र के तौर पर हम सुबह के तारे को हम देख सकते हैं. All right, I want you to listen carefully. There is a star called the morning star, and that star is called the Venus. और हम सभी लोग जानते हैं, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सब लोग बड़े ध्यान से सुने. इधर में एक भोर का तारा है और भोर के तारे को हम लोग वीनस कहते हैं. Now this star is the first star that appears in the evening.
और ये जो वही एक तारा है जो संध्या के समय सबसे पहले दिखाई देता है। And this is also the star that appears that you are able to see early in the morning. और यही तारे को आप बड़े भोर के समय में आप इसको देख पाओगे। In the evening, many of them will be able to see or spot the Venus. और संध्या के समय में बहुत सारे लोग, हम सब लोग उसको देखने के में समर्थ होंगे संध्या के समय। But the morning star is very difficult in the sense not everyone will spot the morning star. लेकिन जो मॉर्निंग भोर का तारे को सभी लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो सुबह में ही आता है। Why? ऐसा कारण क्यों है इसका? Because one has to get up early in the morning. You have to rise up early in the morning to see the morning star. इसका कारण यही है कि यदि आप देखना चाहते तो आपको बड़े भोर तड़के भोर को आपको उठना पड़ेगा और उसको आप देख पाओगे। While the whole world is sleeping, those people who are interested in seeing the morning star, when they rise up early in the morning, only then they'll be able to see the Venus or the morning star. और जो लोग उस वीनस उस तारे को देखने में रुचि रखते होंगे, वही लोग जब पूरा विश्व सो रहा होगा वो सुबह में उठ करके उसको देखेंगे। Similarly, we as believers will be seeing the morning star, which is the Lord Jesus Christ, which is not the whole world, but only a select few. और उसी प्रकार से हम जो विश्वासी लोग भी उसको हम देखने पाएंगे, जिसको प्रभु यीशु मसीह भोर के तारे को कहते हैं, और ये पूरे विश्व के लोग नहीं वरन जो चुने हुए लोग ही उसको देखने पाएंगे। All right. Now this is how the Lord is encouraging the church at Thyatira. और ये इस प्रकार से थुआतीरा कलीसिया को परमेश्वर प्रोत्साहन करते हैं। All right. Now what you see, this picture is the last picture here. And this is the street at Thyatira as it is today. और एक लालू भाई आपका माइक ऑन है? Yeah, this is the picture which shows Thyatira as it is today. और ये जो चित्र आपने देखा है, प्रेजेंट का वर्तमान का जगह का वो है। All right, now we have finished 4 churches as of now. और अभी तक हमने 4 चर्चों को अभी तक खत्म कर पाए हैं। We have seen Ephesus, we have seen Smyrna, we have seen Pergamum, and now we saw Thyatira. और हमने अभी तक इफिसस को देखा है, स्मरणा को देखा है, परगमुन को देखा है, थुआतीरा को देखा है। All right, now we're moving on to the fifth letter to the 5th church. और आइए अभी हम लोग आगे को बढ़ते जाएंगे और 5वीं जो कलीसिया है वो 5वीं संदेश की ओर हम प्रस्थान करेंगे। We're going to study about the letter to the church or the believers at Sardis. हम अभी अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं जो सरदिस के विश्वासियों और वहां के कलीसिया के बारे में। All right. Now, all these 7 churches, as I told you yesterday, existed during the time of Apostle John when he wrote the letter. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं प्रेरित यूहन्ना के समय में वो उसमें वर्तमान में विद्यमान थी। And also, these are also prophetically mentioning, it is written to certain church period that existed after that during the AD time. और हमने सर ने ये भी बताया था कि ये सारे जो है भविष्यवक्ता के जो समय अंतराल था उस समय के दौरान ये सारी कलीसियाएं ऐतिहासिक तौर पर वहां पर वर्तमान में विद्यमान थी और उसी समय में ये सब लेटर वहां उनके लिए लिखे गए थे। Now all these churches existed during that time and they had a particular characteristic at that time. और ये सारी कलीसियां वर्तमान में उनका अस्तित्व था और उनके अंदर एक विशेष स्वभाव हर एक कलीसिया के अंदर हम लोग देखने को मिलता है। And each of those characteristics based on the letter that is written where the Lord addresses represents the church age after that, during the time after the death of the Lord Jesus Christ. और हम सभी लोग जानते हैं कि उसके जो कलीसियाओं का जो कैरेक्टर है वो इस बात को दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो मृत्यु हो जाने के तत्पश्चात जीवित जिंदा होने के बाद की बातों को हम लोग हर कलीसिया के संदेश को देख सकते हैं। All right, if you look at the screen once again to revise, Ephesus means a lawless church, Smyrna means a persecuted church, Pergamos is the compromising church, and what we saw Thyatira, it's the corrupt church.
हम सभी लोग जैसे कि ये जो मैं पिक्चर आपको दोबारा दिखाना चाहता हूं जिससे कि आप लोग समझ जाएं। इफिसस चर्च जो है एक प्रेम रहित चर्च है। दूसरा स्मिरना जो है वो सताई हुई कलीसिया है। और परगमोन जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग अर्थात संसार के साथ में रिश्ता रखने वाली कलीसिया। और थुआतीरा जो है वो है करप्ट अर्थात भ्रष्ट कलीसिया। All right, and now we're going to study about the letter written to the church at Sardis. It is called the dead church. और आज अभी हम लोग जो पांचवा लेटर पत्र जो है सरदिस की कलीसिया को जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। Now I have spoken to you about the 7 stages of the church history. So if you see the screen, you will follow the different stages of the church history. और यदि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो उसका कलीसिया का जो समय था उसके बारे में। और ये जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूं इससे आप समझ जाएंगे जो कलीसिया का जो ऐतिहासिक समय अंतराल को आप यहाँ पर भली भांति देखने पाएंगे। Dearly beloved, if you see the church, if you see church Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea, they all existed when Apostle John wrote the church, and the Lord told him to write specifically to these 7 churches on the different stages of the churches. और हम ये सारी कलीसिया एफेसस, स्मिरना, परगमुम, थुआतीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया ये सारी कलीसियाएं जब प्रेरित यूहन्ना वर्तमान में था और इन कलीसियाओं को उसने ये पत्र लिखे थे। परमेश्वर ने यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना को ये सारी कलीसियाएं इन कलीसियाओं के समय के अंतराल में उन्होंने इन पत्रों को लिखा था। So there are 2 things, as I told you yesterday. One is a local application of what was happening in that particular church at that time. और जैसे कि सर ने बता दिया कि उनके जीवन के लिए 2 प्रायोगिक बातें। पहला है स्थानीय प्रायोगिक बातें। And the second one is apostolic, or it is prophetic. What was happening during the church ages, starting from AD, Anno Domino, or after the death of the Lord Jesus Christ. और उसके तत्पश्चात जो भविष्यवक्ता या फिर ऐतिहासिक जो बातें हैं और या प्रेरितों के समय को हम देखते हैं। उस समय के बातों को जो एडी अर्थात मसीह के मृत्यु के तत्पश्चात जो होते हैं उसके बारे में वहां पर उनके लिए जीवन में प्रायोगिक बातों को हम देख सकते हैं। Yeah, you see that there on the screen. I'm not going to explain it to you. It is very, very simple to understand. I will pass on the notes to you. You can study it in your personal study. और ये जो आप इसको चित्र को देख रहे होंगे उसमें जो नोट्स इसमें दिए गए हैं वो It is very simple. और ये बहुत ही सरल है जिसको आप भली भांति समझ पाएंगे। आपको नोट्स दिए जाएंगे जिससे कि आप इसको समझ सको। You see, Ephesus refers to the apostolic era, and when the apostolic era is from 33 to 64 AD. और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब आप जो एफेसस जो है अपोस्टोलिक इरा अर्थात प्रेरितों के जो समय को यहाँ पर दर्शाते हैं। Okay, now today what we're going to study is about the church, the letter to the church at Sardis. Sardis refers to the Protestant Reformation, which happened in 1520 to 1750. That's what we're going to study today. और आज जब हम सरदिस कलीसिया के बारे में आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं और ये जो है प्रोटेस्टेंट अर्थात प्रोटेस्टेंट का जो जागृति के समय का अंतराल को ये सरदिस की कलीसिया को हम लोग देखते हैं उसी का अध्ययन करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। I hope you're understanding the purpose of this particular slide. और मैं आशा करता हूं कि आप इस जो स्लाइड को आप देख रहे हैं इसका उद्देश्य को आप जरूर समझ गए होंगे। The churches Ephesus till Laodicea existed, and that is why Apostle John wrote a letter, and whatever was happening during that time when the church existed at that time. और जब जो ये सारी कलीसियां एफेसस से लेकर के लवोदिकिया तक की जो सारी 7 कलीसियां जो हैं उस समय में वो वर्तमान में वहां पर अस्तित्व में थी। और अपोस्टल जो प्रेरितों ने जो प्रेरित यूहन्ना ने जब इनको लिखा था उस समय के अंतराल में क्या-क्या हो रहा था इतिहास के तौर पर सारी बातें वहां पर हम लोग देखने को मिलती हैं। Also it was a shadow of the future churches that were going, the church period that is going to take place in AD, as you see here in the era time. That is the implication.
और जो भविष्य में आने वाली जो कलीसियाएं हैं उनकी भी प्रतिछाया हम इन कलीसियाओं के द्वारा हम देख सकते हैं जो कि आने वाले समय में वो अस्तित्व में होंगी। All right, the next slide that you see on the screen is to show all the different letters written to the different churches and the tree of life, crown of life. These are the promises or the blessings which God, the Lord, was telling each church. और ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसको दिखाने का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर ने इतनी जो सारी कलीसियाएं हैं उनके लिए परमेश्वर ने जो प्रॉमिस अर्थात जो वायदे किए थे उसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इफिसस के लिए जीवन का वृक्ष और स्मिरना के लिए जीवन का मुकुट और परगमुम के लिए heaven white stone with your name. Yeah, white stone with your name. See, so when the Lord said, if you overcome, the overcomers will receive this promise of the blessing. This is the highlight of that. और इसका जो इसको दिखाने का यही प्रक्रिया का कारण है कि ये जो सारी कलीसियाओं को परमेश्वर ने बोला यदि तुम ओवरकम अर्थात विजयी होगे तो आपको ये सारे जो वायदे प्रॉमिस मैंने किए हैं वो मैं आपको प्रतिफल दूंगा। Okay, this is for your ready reference and for your personal study. और ये आपके लिए व्यक्तिगत अध्ययन के लिए लाभकारी होगा। Okay, now let me go into the background of the church of Sardis, the letter to the church of Sardis. और चलिए हम लोग अभी सरदिस के कलीसिया के जो पृष्ठभूमि में उसमें हम लोग जाएंगे। All right, now when my wife knows that I'm taking this study, and so she also helps me in giving me some inputs relating to each of the churches. और सर का जो पत्नी है श्रीमती हैं वो सर जानती हैं कि सर यहाँ से अध्ययन कलीसिया से मतलब शिक्षा दे रहे हैं तो वो भी सर को कुछ बातें मदद करती हैं इसके बारे में समझने के लिए। So some of the information that she gave me about the background of the churches is what I'm explaining to you yesterday and today in detail. और आज और कल जो व्याख्यात रूप से सर हमको जो उसका पृष्ठभूमि के बारे में है कलीसिया की पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं वो सर का श्रीमती जी ने उनको मदद किया है। All right, now what I want to share with you is the background to the church in Sardis. और अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं वो सरदिस के कलीसिया की पृष्ठभूमि के बारे में। Sardis was an important Greek city. और ये उस समय की ग्रीक अर्थात ग्रीक लोगों की एक महत्वपूर्ण एक सिटी अर्थात शहर कहलाता था, यूनानी शहर कहलाता था। This was during the period of Alexander the Great. और ये समय जो है सिकंदर महान का समय के समयांतराल था। All right, now at the time during the period of Alexander the Great, the worship of Artemis. Artemis is another famous god who the Romans were worshipping. और जो उस समय में जब सिकंदर महान के समय में आर्तिमस नामक एक देवता की आराधना पूजा अर्चना करना बड़ा ही प्रसिद्ध था। Artemis is known as the goddess of hunting, the goddess of wilderness, and the goddess of fertility. और जो अर्तिमस नामक जो देवता था वो जाना जाता था कि एक शिकार करने वाला देवता या फिर एक जंगली में देवता या फिर एक जो फर्टिलिटी करने वाला जो देवता के नाम से उस समय में प्रसिद्ध था। All right, now the worship of the god and what they were worshipping during the time of Caesar, the Roman emperor, was found in the ruins when they excavated the remains of the church at Sardis. और जब उन्होंने जो रोम साम्राज्य के जो एम्परर और जो कमांडर थे एम्परर थे उस समय उन लोगों ने जब सरदिस की कलीसिया को उन्होंने हटाने का प्रयास किया तो उस समय में इन बातों को उनको देखने को मिलता है। Sardis also had the largest Jewish synagogue. और हम जानते हैं कि सरदिस में उधर में एक जो यहूदियों का सबसे बड़ा आराधनालय हम देख सकते हैं। Now you know all these churches existed in Asia Minor.
और ये सारी कलीसियां जो है एशिया माइनर में हम लोग को मिलती हैं। Now, Asia Minor, we don't have it today, but in those days it was called Asia Minor, which later on disintegrated as part of Europe and Asia as today. और अभी तो हम एशिया माइनर को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसी समय में जो एशिया माइनर कहलाता था कुछ समय के तत्पश्चात वो कुछ भाग उसका यूरोप में चला गया और कुछ इस तरफ को बट गया, तो दो भागों में वो विभाजित हो गया, इसलिए अभी हम उसको एशिया माइनर को नहीं देखते। In those days, Asia Minor was one of the richest province in the whole world. और उस समय के दौरान एशिया माइनर जो है सबसे धनी द्वीप माना जाता था। And all these places, all where you find the 7 churches, all these places had so many temples, pagan temples. और जितने जगहों में हम इन सातों कलीसियाओं को पाते हैं, उस जगह उस समय के अंतराल में सभी जगहों में जो अन्य जाति के जो देवताओं के मंदिर बहुत सारे प्रसिद्ध थे और बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे। Now the Christians in those days, they comprised of the Jews, they comprised of the Jewish believers. और जो विश्वासी लोग हैं वो यहूदिया के जो यहूदी विश्वासी लोग थे, उनसे वो लोग जब वार्तालाप करते थे, उनसे जो सहयोग करते थे, तो The Jewish are those who believe in Jesus as the Messiah. और यहूदी वो है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि वो एक मसीहा के नाम से। The believers consisted of the Gentiles who were drawn from different sectors. और यहूदी लोग इस बात के बारे में भी सचेत होते थे कि जो अन्य जाति लोग हैं जो विभिन्न जगहों से वो आते थे, they believed on the word that was spoken in the churches. और वो इस बात पर विश्वास किया करते थे जो शब्द जो बातें कलीसियाओं में कही जाती थी। And the believers, the Christians in those days, consisted of those who came from worshipping the pagans. They got converted. They also became Christians those days. और उस समय के अंतराल में जो लोग मूर्ति पूजा में फंसे हुए थे, वो लोग भी मसीह के पास आकर के उन्होंने विश्वास किया और वो लोग भी यहूदियों के साथ मिल गए और उसके साथ में आराधना करने लगे। Now, some Bible scholars and those who are involved in the archaeology and excavation, they confirm that there were no solid church buildings in those days. और जो आर्कियोलॉजिस्ट अर्थात जो खोज करता है वो और जो कुछ ज्ञानी बाइबल के ज्ञानी लोग हैं, वो लोग इस बात का दावा करते हैं कि उस समय में इस जो चर्च के जो कलीसियाओं का जो बिल्डिंग अर्थात मकान वहां पर वर्तमान में विद्यमान नहीं थे। They used to gather in groups of 30 and 40 in different houses in those days. और उस समय के अंतराल में ये सभी लोग जो है घरों के अंदर 20-20 या 30-30 के साथ एक साथ मिलकर के वो लोग एकत्रित हुआ करते थे। And they used to gather in the places of wealthy people there because they only can house 30 or 40 people in their homes. और वो लोग ऐसे धनी लोगों के घरों में एकत्रित हुआ करते थे क्योंकि उनके पास ही इतने बड़े घर थे कि उसमें 20 या 30 लोग आ सके। All right. Now, this is the background of those days and those kind of churches. So these letters, in my understanding, what I have understood is these were letters written to the church in these particular locations, which means group of believers of Christians who were existing in Ephesus or Smyrna, Pergamum, and the other places. और यही इसका जो है पृष्ठभूमि है, और इस पृष्ठभूमि को जब मैंने अध्ययन किया तो सर का मानना यह है कि ये जो संदेश हर कलीसिया के लिए दिया गया था वो एक कलीसिया के वहां के जो विश्वासी लोग हुआ करते थे उनके लिए ये कलीसिया ये संदेशों को दिया गया था। जब हम इसका बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है। So was there a problem in the church at Sardis? Was there a problem? क्या सरदिस की कलीसिया में कोई समस्या थी, कोई प्रॉब्लम थी? Yeah, because as I told you, there were a lot of pagan worshippers, lot of pagan temples all around in all the 7 churches.
people. और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि उस समय के दौरान सभी कलीसियाओं के जो समय का दौरान हर एक जगह में अन्य अन्य देवताओं की आराधना करना, पूजा करना, ऐसा उस समय में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करता था। Right. No, so in the time of Sardis, there were people who were taking a lenient approach, saying that why not worship or why not allow the pagan way of worship also in the church? और उस समय के दौरान, सरदिस की कलीसिया के दौरान जो समस्या वो ये थी कि वहां के लोग इस बात को चर्चों में बोला करते थे और विवाद किया करते थे कि आखिर क्यों जो अन्य देवताओं की पूजा अर्चना करना और उनके अनुसार करना चर्च के अंदर क्यों उसका सहमति नहीं है, अनुमति नहीं देते। Why don't we go along with the people of the world, how they are worshiping, and allow a little bit of it into the church? That was the proof that was happening when they started the excavation of the remains of Sardis. और जो सरदिस की जो रही बची हुई जगहों के बारे में जब खोजकर्ताओं ने इस बात को बताया कि उस समय में लोग इस बात को बोलते थे कि तुम आखिर क्यों जो जिस प्रकार से संसार जिस रीति से आराधना वर्ष पूजा अर्चना कर रहा है वैसे ही कलीसियाओं के अंदर क्यों थोड़ा सा भी हमको अनुमति नहीं मिलती उसी प्रकार से करने की। Now, history says that the largest synagogue existed in Sardis. When that was excavated, they found many things in the synagogue which showed that they were allowing pagan way of worship even in these synagogues. और इतिहास यह बताता है कि सरदिस के अंदर ही सबसे बड़ा आराधनालय को पाया जाता है और जब इस आराधनालय को उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया और इसको मिटा दिया उस समय में जो खोजकर्ताओं ने पाया और प्राप्त किया ऐसे उनको चिन्ह मिले कि उस समय के दौरान आराधनालयों में जो अन्य जाति के देवताओं की आराधना करना वहां पर लोग उनको अनुमति दिया करते थे। Now they found in the altar the heads of animals which are carved there. They found many pictures of pagan way of worship inside the synagogue. So the excavators say that it is possible that they allowed a compromising attitude to go along with the local Roman governments there. और उस समय के खोजकर्ताओं ने इस बात की खोज किया कि जब वो जो आराधनालय था जब वो टूट गया था तो उन लोगों ने इस बात को प्राप्त किया कि उधर में एक वेदी हुआ करती थी और उधर में जो जानवरों के उनको जो हड्डी मड्डियां मिलती थी वहां पर और इस बात को उस अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग जो है जो अन्य जाति के देवताओं की पूजा अर्चना आराधना करना बलिदान चढ़ाना इस प्रकार की प्रक्रिया को उन चर्चों में अनुमति दिया करते थे आराधनालयों में। All right, now I'm skipping some slides here because they are more in detail given only for use for your reading. This will give you the background of the churches apart from whatever I'm telling you. So I'm not getting into the details of these the slides. और जो स्लाइड्स में कुछ आगे को बढ़ता चला जा रहा हूं क्योंकि इन स्लाइड्स में आपको कुछ और भी गहरी पृष्ठभूमि के बारे में और उसका बैकग्राउंड के बारे में आपको समझने में मदद मिलेगी इसीलिए आप इनको जरूर अध्ययन करें बाद में जब मैं आपको नोट्स भेजूंगा। I hope all of you are going through the slides that I send it to you because that is important because I'm only giving you the highlights but for your study for your understanding it is better that you read through all these things because I don't have the time to explain everything. Whatever I've collected, I put it in a slide for your reading. और सर जो कुछ भी स्लाइड्स हमको दे रहे हैं वो स्लाइड्स हमारे व्यक्तिगत अध्ययन के लिए बहुत ही लाभकारी है और सर आशा करते हैं कि आप इनका अध्ययन कर रहे हैं और इनसे आपका अध्ययन में रुचि ला रहे हैं और सर आज जो कुछ भी हमको बताते हैं उसमें उसके पास उसको पूर्ण रीति से उसका व्याख्या करने के लिए समय की कमी के कारण नहीं करते हैं लेकिन आप इसको व्यक्तिगत तौर से अध्ययन जरूर करें और उसका लाभ प्राप्त करें। All right. Now, Sardis is supposed to be a commercial and a very wealthy city in Asia Minor. और हम सभी लोग जानते हैं कि जो सरदिस जो है सबसे ज्यादा जो धनी शहर के नाम से प्रसिद्ध था। All right.
And there were 5 major roads that were leading to Sardis and from Sardis. That's how important this place Sardis was. और इस जगह की जो महत्व और महत्वपूर्णता इसी बात से प्रमाणित होती है कि उस जगह को जाने के लिए 5 बड़े बड़े रोड थे और 5 रोड उसको जाने के लिए और उससे 5 रोड जो है आते थे. Now the king who formed who was instrumental in creating Sardis was one of the wealthiest emperors in the whole world. और उस समय के दौरान जो एक एम्परर था जो सबसे ज्यादा धनी पूरे विश्व स्तरीय में नंबर 1 पर आने वाला धनी एम्परर था वहां का सरदिस का. But despite all that, Sardis was conquered twice during that time. ये सब होने के तत्पश्चात भी सरदिस जो है 2 बार उसको लोगों ने जीत लिया, उसको हरा दिया. All right. So these are some pictures of what you find on the net. These are the remains of the church at Sardis. Some these are not church at Sardis. These are some of the remains of excavation that you find in Sardis. और आप यहाँ पर जो चित्रों को देख रहे हैं, इन चित्रों में जो आज जो नेट पर पाए जाते हैं इस सरदिस के कुछ चिन्ह हैं. ये चर्च बिल्डिंग तो नहीं है लेकिन ये उसके चिन्ह हैं कि उस समय में ऐसे थे. Okay. Now Sardis today is called Sart. और आज जो वर्तमान में सरदिस जो नाम है आज सर्त के नाम से जाना जाता है. All right. This is how it is called in Turkey today. और तुर्की में आज इसी नाम से इसको जाना जाता है. So the meaning of the word Sardis is the escaping one or the one who comes out. और जो सरदिस का जो नाम का अर्थ यही है कि वो जो बचकर निकलने वाला या फिर वो बाहर आने वाला. All right. There's another meaning to the word Sardis also. It means restoration. और उसका दूसरा मतलब एक और भी है कि पुनर्स्थापना. All right. So that is the meaning of the word Sardis. There are 2 meanings to it. और जो सरदिस नाम के 2 अर्थ हैं. पहला कि बचकर निकलना या उससे जो एक बाहर निकल के आता है और दूसरा रिस्टोरेशन अर्थात पुनर्स्थापना. All right. Now when in verse 1 we read that it is you have a mention about the 7-fold spirits and the 7 stars. और ये जो बात है वचन 1 में हम देखते हैं कि जो हमने जैसे पहले बताया था कि 7 तारे और 7 आत्माओं के बारे में. All right. Now this is very significant when the Lord mentions that. There is a reason when the Lord mentions that. और इस तरीके से परमेश्वर इन सभी बातों को यहाँ पर मेंशन अर्थात उनको बताते हैं और दिखाते हैं. And then the Lord goes on to mention about this particular church and saying that you are alive, you are dead. You are alive, you think you are alive, but you are dead. और प्रभु इसीलिए उनसे इस बात को बोलते हैं कि सरदिस तुम जिंदा तो हो लेकिन मेरी नस्ल में तुम मुर्दा हो. All right. Now this reminds us of what Apostle Paul told Timothy. और ये बात हमको याद दिलाती है कि क्या प्रेरित पौलुस ने तिमोथी को बोला. All right. Now if you read can we read 2 Timothy chapter 3 and verse 5? क्या हम में से कोई भी भाई दूसरा तिमोथी उसकी पत्री उसका 3 का 5 पढ़ सकते हैं? 2 Timothy chapter 3 and verse 5. दूसरा तिमोथी उसका 3 का 5. I'm just giving you some highlights of this. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना. Okay, having a form of godliness but denying the power thereof. Now, so Sardis was thinking that it is alive, but the Lord is saying you are a dead church. और यहाँ पर वो इसी बात को बताते हैं कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को न पहचानेंगे. और यहाँ पर प्रभु सरदिस की कलीसिया को यही बात बता रहे हैं कि तुम उनके कारण मरे हुए हो. All right, you know what was happening with this church in Sardis or the believers in Sardis? आप लोग क्या इस बात को जानते थे कि उस समय में जो कलीसिया के जो सरदिस के विश्वासियों के साथ क्या हो रहा था? There are some lessons for us to learn from this. और हमारे लिए इधर में कुछ बातें कुछ विषय जो हम सीख सकते हैं.
When the people looked at the believers of the church in Sardis, they were thinking it is a very healthy church. और जब विश्वासी लोग या लोग यदि बाहरी तौर से देखें तो वो इस बात को जरूर समझ पाएंगे कि उस समय की जो सरदिस कलीसिया है वो सबसे धनी कलीसिया है। Now they were thinking that everything is going on well with this church. It's a very enthusiastic church. They're very eager. They're doing a lot of spiritual work. This is what the people from outside were thinking about this church. और इस कलीसिया के बारे में जो लोग व्यक्ति बाहर खड़े हुए बाहर से देखा करते थे तो वो लोग इस बात को देख पाते थे कि जो सरदिस की कलीसिया है वो बहुत ही अच्छी और सुचारू रूप से लगनशीलता के साथ में वो बढ़ती चली जा रही है और बहुत ही अच्छी कलीसिया है। And people were speaking very high of every member of the church. See how they are ignited, see how they are lively, see how they have a thirst, and all those things were spoken of very highly by the people outside of the church. और जो बाहरी लोग हैं जो चर्च के बाहर के लोगों के द्वारा इस बात को सुना जाता था और कहते थे वो लोग कि देखो कैसे सरदिस के कलीसिया के विश्वासी लोग हैं एक साथ जुड़े हुए हैं एकता में हैं और उनके कार्यकलाप को देखो आप कितने अच्छे वो लोग कितने अच्छे से चल रहे हैं। But to this church, the Lord was looking at them and saying that you think that you are alive, but in my eyes you are dead. और यही इसलिए यहाँ पर प्रभु उस कलीसिया को कहते हैं कि तुम अपने नजरों में तो इस बात को कहते हो कि हम जिंदा हैं लेकिन मेरी नजरों में परमेश्वर कहते हैं मेरी नजरों में तुम मुर्दे के समान हो मुर्दे हुए हो। Why did the Lord say that? परमेश्वर ने उनको ऐसा क्यों कहा? Dearly beloved, we have a message in that for us as believers. और हम विश्वासी होने के नाते प्रिय भाइयों बहनों हमारे लिए वहां पर एक संदेश है। We are outwardly very spiritual. हम लोग जो बाहरी तौर से हम लोग बहुत ही ज्यादा आत्मिक होते हैं but inwardly we are dead. लेकिन हम अंदर से मुर्दा हैं और मरे हुए हैं। It means outwardly we do a lot of things. We at least pose as doing a lot of things, but inwardly our spiritual condition is a dead condition. That is what the Lord meant when He made that mention to the church at Sardis. और आज वर्तमान के समय में हम लोग इस बात को तो प्रमाणित करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं कि हम बाहरी तौर से तो आत्मिक दिखते हैं और उसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं लेकिन आंतरिक तौर से हम लोग मुर्दा हैं मरे हुए हैं। और यही बात यही संदेश सरदिस की कलीसिया के लिए परमेश्वर देना चाहते हैं और वही हमारे लिए भी। Dearly beloved, we have to be very, very careful of that kind of a situation. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों विश्वासियों हमको इसके प्रति बहुत ही गंभीर होना है। In their heart they are spiritually dead. In their heart they don't have the life which they are showing to the outward people that they have. और वो उनके दिलों में और उनके हृदयों में मनों में वो आत्मिक तौर से मुर्दे थे लेकिन बाहरी तौर से वो लोगों को दिखाया करते थे कि वो बहुत ही आत्मिक और अच्छे और धर्मी व्यक्ति हैं। As we read this church about the letter to the church at Sardis, when we understand this, we will understand why the Lord was saying this and what were the reasons for the Lord to say, to make this kind of a statement. और हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों आखिर प्रभु ने उन लोगों को ये सब बातें कही और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट और उन्होंने क्यों उनके ऊपर उनके प्रति किए। All right, and that is what we will study and we will understand from this church. और ये सब बातें जो है हम उसका अध्ययन करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। As we all know that every 7 letters are divided into some subdivisions. और जैसे कि हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सातों कलीसियाओं को जो 7 संदेश हैं वो 4 भागों में उनको विभाजित 4-5 भागों में उनको विभाजित करके प्रभु उनको प्रस्तुत करते हैं। Yeah, it will be 4 divisions or 5 divisions, but more or less they follow the same pattern as how the Lord was addressing the church. और ज्यादा या कम लेकिन वो हर कलीसिया के जो तरीका है तौर तरीका उनको प्रस्तुत करने का वो इसी तरीके को वो एक दूसरे के समान उस तरीके को वो लोग फॉलो करते हैं अनुकरण करते हैं। Alright, so that is what you see, which I'm showing you on the screen. और ये बात जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा था ये वही है। Right. Now we will look at the first part of it, which is the salutation, which is verse 1. और आइए हम लोग जो पहला जो बात को हम लोग देखेंगे जो कि अभिवादन करना है कलीसिया का। Alright, let's read verse 1. और चलिए हम लोग वचन 1 पढ़ेंगे। और सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की
7 आत्माएं और 7 तारे हैं। यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। All right. Now, every first verse of that particular letter will always point towards the Lord specifically speaking a particular message because of certain things that church is doing. और जिस किसी भी कलीसिया के बारे में जब आप शुरुआती वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु उनके एक विशेष बात के बारे में और एक संदेश या उनकी बात जो वो करते हैं उसके बारे में वो पहले से वर्ड में ही, पहले शब्द में ही हमको देखने को मिल जाता है। All right. Now, when the Lord speaks about 7 spirits, what does he mean by 7 spirits? It speaks of the work of God, the 7 different work of God. और जब वो पहले वचन में 7 आत्माओं के बारे में, परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में बोलते, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि परमेश्वर के 7 कार्य। All right. And when he speaks about the 7 stars, it talks about the enlightenment to the church, to the people or to the church. और जो 7 सितारों के बारे में अर्थात तारों के बारे में जब वो बात करते हैं तो वो 7 तारे इसी बात को उनके प्रकाशमय होने को दर्शाते हैं और बताते हैं। And so those are the 7 different stages or 7 different significance of each of those messages to the churches. और यही वो 7 प्रकार के जो स्तर हैं और 2 प्रकार के जो स्तर हैं जो हर एक कलीसिया के लिए और सरदीस की कलीसिया के लिए परमेश्वर यहाँ पर उनको बता रहे हैं और दे रहे हैं। Now, can we read Revelation 2 and verse 2? क्या हम लोग प्रकाशित वाक्य 2 का 2 हम लोग पढ़ेंगे? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। All right. So here in this verse, you see the Lord mentioning about he's holding the 7 stars in his right hand. और यहाँ पर परमेश्वर यही बात को बताते हैं कि वो अपने हाथों में 7 सितारों को पकड़े हुए लिए हुए हैं। All right, but in Revelation chapter 3 we read that he has the 7 spirits and the 7 stars. और लेकिन हम प्रकाश वाक्य 3 का 1 में हम पढ़ते हैं कि तो वहां पर वो 7 आत्माएं और 7 तारों के बारे में बातें करते हैं। All right, now this signifies the kind of revival work that was happening in the spirit and revival work that was happening in the light of understanding the word of God. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो इन बातों को कहने के पश्चात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहां पर एक पुनः जीवित होना या पुनः स्थापित होना या पुनः उसका रिस्टोर होना, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। Now, Sardis, as I told you at the beginning, if you remember, the Protestant Reformation Church happened starting from the time of Sardis. और सरदिस के समय से ही जो प्रोटेस्टेंट का जो रिफॉर्मेशन अर्थात पुनः स्थापना या पुनः उसको स्थापित करने का जो समय था वो वहीं से शुरुआत होता है। All right, I'm going to stop here. I thought I will finish Sardis today, but it's not possible. So let me stop here. It's 9 o'clock. Now just remember this. Now the Reformation in the church from the Roman Catholic to the Protestant, as we know, had happened by Martin Luther. This happened during this period. That is, the Sardis church was instrumental in church reformation. और जो प्रोटेस्टेंट का चर्च का जो रिफॉर्मेशन टाइम जो है उसी समय से जब सरदिस की कलीसिया विद्यमान या वर्तमान में अस्तित्व में थी उसी समय से ये हुआ था। और जो मार्टिन लूथर है उसने रोमन कैथोलिक से जो प्रोटेस्टेंट है उसका रिफॉर्मेशन को पुनर्स्थापना को हम लोग देख सकते हैं इस सरदिस कलीसिया के समय से। All right, God willing, we will continue this next week. I'm sorry I couldn't complete the church in Sardis. I'm trying my best. There's so much of things that I feel like sharing, but the time is not supporting me. So God willing, we will continue with the church of Sardis next week.
और यदि परमेश्वर हमें यदि मदद करेंगे तो अगले हफ्ते में हम लोग इसका अध्ययन को जारी रखेंगे। और आज मैंने तो सर ने तो ये सोचा था कि इसको हम पूर्ण तरीके से सरदीस की कलीसिया का अध्ययन को पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहने और शेयर करने के योग्य, सीखने के योग्य हैं, लेकिन समय अनुमति नहीं देता है। इसके चलते मुझे खेद है कि मैंने आज इस कलीसिया का इस अध्ययन को पूरा नहीं कर पाया। अगले हफ्ते में हम प्रयास करेंगे इसको पूरा करने का। Thank you, Deepu, for the nice translation.